Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Khan, teacher of biology at Absex Madan. Today we are going to study the chemical coordination or the endocrine system in animals. What do you mean by this term endocrine system? If you remember, we have discussed that in the start of this chapter that there are two types of coordination. One is known as the chemical coordination, while the other one is known as the nervous coordination. It is one of the chemical coordination and is also known as the endocrine system. Most of the activities like growth, reproduction, reabsorption, blood sugar level, etc. need to be regulated, which is performed by the endocrine system. Means that body metabolism like growth, reproduction, reabsorption, sugar maintenance in the blood, etc. are maintained or performed by the endocrine system. Endocrine system is actually the chemical coordination. Endocrine system uses chemicals to communicate with body effector. These chemicals are known as hormone. The endocrine system uses a chemical, and that chemical is known as a hormone, and that hormone is used as a messenger, and that carry the impulses from the stimulus to the effectors. A hormone can be defined as a specific chemical messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland. Hormone एक स्पेसिफिक मैसेंजर होता है मीन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स जो कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक केमिकल्स के ज़रिए मैसेजेस कैरी करता है. अगर याद हो नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो कंपोनेंट थे कि स्टिमुलस था रिसेप्टर्स थे, स्टिमुलस था रिसेप्टर्स थे, फिर उसके बाद जो है उसमें नर्वस न्यूरॉन और फिर उसी न्यूरॉन के बाद वो कोऑर्डिनेटर्स थे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे. सेम इज़ द केस है, यहाँ पर भी वही है लेकिन कुछ चेंजेस हैं कि रिसेप्टर वही है, मतलब रिसेप्टर बॉडी के किसी भी पार्ट को कहते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को. यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो कोऑर्डिनेटर्स क्या चीज़ हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे ये ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसे कहा जाता है. ग्लैंड्स बॉडी के वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक काइंड सिक्रीशन करता है. तो यहाँ पर वो कोऑर्डिनेटर्स जो है वो क्या है, वो ये ग्लैंड है. अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो इम्पल्स कैरी करता था या जो मैसेजेस कैरी करता था वो कौन सा चीज़ था, दैट वाज अ न्यूरॉन. यहाँ पर भी ये इम्पल्स कैरी होते हैं, मैसेजेस कैरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसके ज़रिए होते हैं वो न्यूरॉन नहीं है, वो हार्मोन है. ये एक केमिकल मैसेंजर है. तो ये कैरी करता है बॉडी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं मीन जो ग्लैंड्स हैं, उसी ग्लैंड से जो इफेक्टर्स है वहाँ तक ये केमिकल्स में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और वो हार्मोन्स बॉडी में जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है वो मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन कुछ बुक में दिए गए हैं और कुछ बुक में नहीं दिए गए हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, parathyroid, thyroid, adrenals, pancreas, ovaries in the females and testes in the male. अच्छा, और अगर लोकेशन की बात की जाए या स्ट्रक्चर के कहाँ पर होता है, दिस इज़ द पार्ट हाइपोथैलेमस, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज़ द पीनियल ग्लैंड, दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, parathyroid glands, thyroid glands, thymus gland, a liver also act as a gland, mean it has two function, endocrine and exocrine as well. Adrenal gland, kidneys, pancreas, ovaries in the female or testes in the male. These are the different glands, and these glands used to produce different types of hormones for the metabolism of the body or for growth of the body. Endocrine glands in the human beings. The endocrine glands are also known as the ductless gland. Achha, there are two types of the glands. One is known as the endocrine glands, the other one is known as the exocrine glands. Endocrine glands का मतलब है कि ये ductlets होते हैं. Ductlets का मतलब कि कोई specific pathway इसका नहीं होता, डायरेक्टली जो केमिकल रिलीज करता है वो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है. और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, वो जो केमिकल रिलीज करते हैं उसका एक स्पेसिफिक पाथवे होता है जस्ट लाइक द ब्लड वेसल्स. तो वो उसी पाथवेज के ज़रिए स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया जो है वह उसमें मूव करता है.
The endocrine glands produces chemical substance called as hormones and it directly diffuses into the blood and reaches their target organs. जैसे ही बताया कि endocrine glands जो है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन्स क्या है, डकलेट्स है। ये ग्लैंड जो है डकलेट्स है तो इसके केमिकल्स डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज होते हैं और ब्लड के जरिए उसी टारगेटेड पार्ट जो है वहाँ तक रीच होता है। The endocrine glands in our body are pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal, testes and the ovaries. Hypothalamus releases different types of hormones. Pineal, pituitary glands. Pituitary gland consists of two lobes, the anterior pituitary and the posterior. Each lobe releases specific hormone and each hormone has different function. Intermediate pituitary and thyroid. These are the different types of hormones released by these glands. We're going to study these hormones and the function one by one. Pituitary gland, it is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of the brain. Many hormones of this gland influence the secretion of other glands. It has two lobes, that is anterior and posterior. Each lobe secretes different hormones. Pituitary gland is also known as the master gland because of not because of the size or the structure, but because of the function it performs. It releases hormones that influence other secretions. Means that कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, it releases tropic hormones. Tropic hormones are the hormones which influence the secretion of other hormones or other glands. कि हम ट्रॉपिक हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहते हैं कि वो इस जब ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होता है तो अदर ग्लैंड्स अपने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज नहीं होता तो बाकी ग्लैंड्स जो है अपने हार्मोन रिलीज नहीं करते हैं। somehow it is under the control of the pituitary gland, that is why इसको क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। it consists of the two lobes, the anterior and the posterior, और हर एक लोब का इंटीरियर अलग से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पोस्टीरियर अलग से हार्मोन प्रोड्यूस करता है। The pituitary gland, the anterior lobe, it produces many hormones, that is somatotropin or growth hormone and thyroid stimulating hormone. Somatotropin, this hormone promotes the growth of the body. As the name indicates, growth hormone. It means that it is responsible for the growth of the body. The deficiency of this hormone causes dwarfism. The excess of this hormone causes gigantism. Means that when this hormone is not released in enough amount during the growing period, then it causes deficiency, and this deficiency causes the dwarfism. जब ये हार्मोन ग्रोइंग एज में, ग्रोइंग पीरियड में कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है या उस पीरियड में इसकी डिफिशेंसी होती है तो बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ डिस्टर्ब होता है और काज करता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बॉडी के पार्ट्स जो है, हाइट है, वेट, वो सब कुछ क्या है, वो शॉर्ट होते हैं। द एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन काजेज जाइगेंटिज्म। अगर ये हार्मोन ग्रोइंग एज में मोर देन द रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फिर ये क्या करता है, जाइगेंटिज्म काज करता है। जाइगेंटिज्म जो है ये क्या है, एक्सेसिव इंक्रीज इन द हाइट, कि हाइट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है। इसके अलावा एक टर्म मैं भूल गया हुआ कि ये हार्मोन अगर सिक्रीट होता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स जो है उससे उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, फिर उसको कहते हैं एक्रोमेगली। Thyroid stimulating hormone, it stimulates thyroid gland to produce hormone. Thyroid stimulating hormone जो है it is one of the tropic hormones. See, thyroid stimulating hormone, this hormone stimulate thyroid gland to produce the thyroid hormones. इस हार्मोन का काम क्या है कि ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर लें और फिर उन हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है वो क्या करें, वो परफॉर्म कर लें। अच्छा, the posterior lobe, this lobe secretes and store hormones. Vasopressin also known as antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. This hormone increases the rate of reabsorption of water from nephrons. The deficiency of this hormone called diabetes insipidus. अच्छा, अगर याद हो हम जब पढ़ लेते reabsorption of water in the kidneys, उसमें भी इसका जिक्र किया था कि ये हार्मोन क्या है, ये क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है उसको इंक्रीज़ करता है। मीन जब बॉडी में वाटर लेवल जो है वो कम हो तो ये हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है ताकि जो ब्लड वाटर लेवल है उसकी मेंटेनेंस जो है वो कर ले।
अगर ये हार्मोन इसकी डिफिशेंसी हो तो इस कंडीशन में ये क्या काज करता है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस हम उसको कहते हैं कि जिसमें द पर्सन यूज टू यूरिनेट क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। जो बंदा या बंदी होती है, जो पेशेंट है जिसमें ये डिफिशेंसी है, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेट करते हैं बिकॉज द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होता है, सो देन इट काज दैट प्रॉब्लम। अच्छा, another hormone that is produced by the posterior lobe is oxytocin. It stimulates the contraction of uterus wall in mothers during childbirth. It is also necessary for the ejection of milk from the breast. अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो है it is only produced in the female during the labor, और उस कंडीशन एट दैट टाइम इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, यूटरस वॉल जो है या यूटरस मसल्स जो है उसकी कंट्रक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करता है, और इसी वजह से जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का वो इजीली हो जाता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड्स, a pair of glands present in the neck region which forms thyroxine hormone in response of थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और पिट्यूटरी। थायराइड ग्लैंड्स हैं जो नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, TSH जो है मीन अट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये थायरोक्सिन जो कि इस थायराइड ग्लैंड का अपना हार्मोन है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड्स हैं। Thyroxine hormone. Thyroxine controls the metabolism of carbohydrates, fats, and proteins and helps in the proper growth. If the diet is deficient in iodine, it causes deficiency of thyroxine, leads to cause the goiter, in which enlargement of thyroid gland cause the swelling of the neck. अच्छा, अगर ये थायरोक्सिन जो है ये इसका काम क्या है कि ये यूज़ करता है आयोडीन। आयोडीन इसलिए यूज़ करता है कि इसका जो फंक्शन है या इसकी जो एक्टिवेशन है वो आयोडीन के कंपोनेंट ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है उससे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थायरोक्सिन जो है ये आयोडीन पे मोस्टली डिपेंडेंट होता है। अगर डिफिशेंसी आ जाती है बॉडी में आयोडीन की, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और ये ग्लैंड जो है ये क्या होता है, ये स्वेल अप होता है। जैसे ये स्वेल अप होते हैं तो ये निक रीजन जो है यहाँ पे ये बाहर की तरफ आ जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, मीन जो निक स्वेल अप होती हैं उस कंडीशन को कहते हैं गोइटर, जो कि आयोडीन की डिफिशिएंसी से काज्ड होती है। Excess secretion of thyroxine causes exophthalmia, that is the protrusion of eye. अगर थायरोक्सिन मोर देन द रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो फिर ये एक्सोप्थेल्मिया काज करता है। और एक्सोप्थेल्मिया क्या है कि आईज जो है, जो आई बाल है, वो अब ये जो सॉकेट्स है जहाँ पे ये लोकेटेड है, ये उसी सॉकेट से बाहर की तरफ आ जाते हैं, निकले हुए होते हैं, तो उसको फिर एक्सोप्थेल्मिया कहता है। थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म है, और इसी की वजह इसकी मेटाबॉलिज्म से प्रॉपर ग्रोथ जो है वो मेंटेन करता है। द डिफिशिएंसी काजेस गोइटर एंड द एक्सेस काजेस द एक्सोप्थेल्मिया। थायराइड ग्लैंड्स जो है ये एक दूसरा हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं कैल्सीटोनिन, और कैल्सीटोनिन का फंक्शन क्या है कि इट लोअर्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को क्या करता है, उसको रिड्यूस्ड करता है। मीन के जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा मोर देन द रिक्वायरमेंट हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो ये कैल्सीटोनिन जो है ये सिक्रीट होके उस कैल्शियम को ब्लड से लेके बोन पर डिपॉजिट करता है तो ब्लड में कमी आ जाती है और बोन पर डिपोजिशन हो जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड, ये दिस वन एंड दिस वन। पैराथायराइड ग्लैंड्स is present below the neck, below the thyroid glands. Two parathyroid glands which are close to thyroid gland, it secrete the parathormone which required to control the calcium and phosphorus. Its deficiency causes cramps and spasms. अच्छा, जो पैराथॉर्मोन है या पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और उस हार्मोन को कहते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। मतलब ये है कि जब कैल्सीटोनिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो ये कैल्शियम लेवल जो है ब्लड से, उस कैल्शियम को ब्लड से लेके बोन पे डिपॉजिट करता है। अगर इसकी सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा है तो जब ब्लड में डिफिशिएंसी आ जाती है कैल्शियम के, इसके रिस्पॉन्स में पैराथॉर्मोन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। पैराथॉर्मोन ब्लड से
कैल्शियम रिलीज़ करके बोन से कैल्शियम रिलीज़ करके ब्लड में उसका लेवल जो है वो मेंटेन करता है। मीन्स दैट कैल्सीटोनिन एंड पैराथार्मोन आर यूज टू कम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दोनों के अपोजिट काम करते हैं। जो ब्लड लेवल ये कम कर लेता है, ये मेंटेन करता है। फिर अगर इसकी मेंटेनेंस से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ये दोबारा इसको क्या करता है, मेंटेन कर देता है। अच्छा, thymus gland, it is present near the heart and secrete the hormone thymosin. It is required for the maturation of T lymphocyte which is required for the immunity. एक दूसरा ग्लैंड है जिसको कहते हैं thymus gland, जो कि जो चेस्ट कैविटी है उसमें प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है कि ये थाइमोसिन प्रोड्यूस करता है। थाइमोसिन का फंक्शन क्या है कि ये टी सेल्स ऑफ द लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है, एंड दैट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी। फिर ये इम्यूनिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। The adrenal glands, a pair of glands present over the kidneys known as the adrenal glands. Adrenal glands having two parts, outer adrenal cortex and the inner medulla. अगर याद हो किडनी के भी दो पार्ट्स होते थे, मीन्स द एक था कॉर्टेक्स और एक था मेडुला। तो इस हार्मोन के ये जो दो पार्ट्स है ये हार्मोन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है तो उसको एड्रीनल वो हार्मोन अलग होता है, और जो मेडुला में पाया जाता है वो हार्मोन अलग होता है। अच्छा, दीज आर द किडनीज, और ये इस पे क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड्स है। अच्छा, जो हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स का रीजन जो है उससे रिलीज होते हैं इस एड्रीनल ग्लैंड्स के, वो क्या है, it is stimulated by anticorticotropic hormone and forms three hormone, namely glucocorticoid, mineralocorticoid and androgens. It requires for glucose metabolism, mineral balance and secondary sexual characteristic respectively. अच्छा, glucocorticoid is used, this hormone is used to maintain our used for the purpose of ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको मेंटेन करता है। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स जो है ये मिनरल्स, जो जितने भी मिनरल्स है इसके मेटाबॉलिज्म को कैटेलाइज करते हैं। एंड्रोजन्स जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है। अच्छा, एड्रीनल मेडुला, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं। अब मेडुला के जो मेडुला इस ग्लैंड का जो पार्ट मेडुला में है उसके हार्मोन्स जो है, इट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, या एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन हार्मोन, इट आल्सो नोन एज एन इमरजेंसी हार्मोन, आर द हार्मोन ऑफ 3F, द फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। अच्छा, इस अगर याद हो हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था। दैट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज actually catalyzed or controlled by this adrenaline or epinephrine, and parasympathetic is actually controlled by the noradrenaline or norepinephrine. It also known as the emergency hormone or the hormone of the 3F. जब sympathetic conditions होते हैं, मीन emergency situations होते हैं, fight, flight और fright, तो इस condition में ये हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होता है, और इसके प्रोडक्शन की वजह से जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, और इसी से जो डाइजेशन है, डाइजेशन को इनहिबिट किया जाता है। बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम की जाती है, तो ये सब कुछ कंट्रोल होता है किस चीज़ से, इस एड्रेनलिन हार्मोन्स के सीक्रेशन से। अच्छा, अगर ये जब इमरजेंसी सिचुएशंस है ये ओवरकम हो जाए, मीन के ख़त्म हो जाए, फिर बॉडी के इन्हीं फंक्शंस को फिर नॉर्मलाइज किस तरह करना है, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये नॉरएड्रेनलिन के हेल्प से ये कंडीशन दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं। ये क्या करता है, जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मलाइज करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर लेता है, ब्रीदिंग रेट को नॉर्मलाइज कर लेता है, डाइजेशन को दोबारा से स्टार्ट कर देता है, जहाँ जहाँ ब्लड की सप्लाई रुकी हुई थी वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉरएड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन का काम है। दिस इज़ द ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स है जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला में पाए जाते हैं। मीन्स किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, तो इसी वजह से ये हार्मोन भी ये ग्लैंड्स जो है ये भी इन दो हिस्सों में मुख्तलिफ पार्ट्स और मुख्तलिफ हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है।
अच्छा, पेंक्रियाज इट इज़ अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज जो है इसका दो पहले ही बताया था कि इसके दो फंक्शन है, मीन इट इज़ डुअल इन नेचर। ये एंडोक्राइन भी है, ये एक्सोक्राइन भी है। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरान। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज बीटा सेल्स एंड द अल्फा सेल्स, विच परफॉर्म्स हार्मोन इंसुलिन एंड हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रिस्पेक्टिवली। एक्सोक्राइन फंक्शन जो है इसका क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन इसका डाइजेशन में है, और डाइजेशन में इसका क्या है कि ये बाइल प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि एक कॉमन बाइल डक्ट होता है, उसके ज़रिए फिर इंटेस्टाइन्स में ये ट्रांसफ़र होता है। जबकि एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है कि जो पेंक्रियाज है इसका 99% जो है वो एक्सोक्राइन है, एंड द रिमेनिंग 1% इज़ द एंडोक्राइन। तो उसी 1% में एक स्पेसिफिक सेल्स होता है जिसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरान्स। और फिर ये आइलेट्स ऑफ लैंगरान्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, एक को कहते हैं बीटा सेल्स और एक को कहते हैं अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स अलग से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल्स अलग से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इंसुलिन, बीटा सेल secrete the insulin is produced by the beta cells. Insulin hormone which control the blood sugar. The excess of blood sugar converted into glycogen and stored into the लिवर। अगर बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है कि ये एक्सिस ग्लूकोज इन द ब्लड जो है उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन काजेज डिजीज इज डायबिटीज मेलिटस। जो इंसुलिन की डिफिशिएंसी है, इंसुलिन की डिफिशिएंसी क्या काज करती है, डायबिटीज मेलिटस मीन जो शुगर जिसे हम कहते हैं वो काज कर लेता है। ग्लूकागोन, अल्फा सेल सीक्रेट द ग्लूकागोन हार्मोन विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग स्टारवेशन। और जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकागोन का काम क्या है कि ये ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में जब ज़रूरत होती है। तो जब अगर इंसुलिन ना हो तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमेशा हाई रहता है, तो इसी वजह से शुगर काज होता है। अच्छा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज़ द पेंक्रियाज, और ये इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन मीन कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है जिसको स्टोर करते हैं गाल ब्लैडर में, और इसी कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए इंटेस्टाइन में ये ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ पेंक्रियाज। अगर पेंक्रियाज का ये पार्ट ले ले जिसमें हम ये आइलेट्स ऑफ लैंगरान की बात करते हैं, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरान का ये स्ट्रक्चर है, और फिर ये अल्फ़ा सेल्स है और ये क्या है, बीटा सेल्स है। कि ऑलमोस्ट कितने हैं, 70% जो है वो क्या है, वो इसके बीटा सेल्स हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शंस करते हैं। बाकी 5 सेल्स जो हैं वो अल्फ़ा सेल्स है, जो कि ये बाकी हार्मोन्स जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं, 20% ऑफ दिस। अच्छा, गोनेड्स, गोनेड्स and male, a pair of testes present which act as a heterocrine glands. It's stimulated by follicle stimulating hormone and interstitial stimulating hormone of the pituitary gland. Gonads भी heterocrine है, मीन इसका भी endocrine और exocrine फंक्शन होता है, एंड रिस्पॉन्स टू और ये ट्रॉपिक हार्मोन से इसकी प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल होती है। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द लैडिक सेल्स विच रिजल्ट टू प्रोड्यूस टेस्टिस। अच्छा, ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में दो तरह के सेल्स होते हैं। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो दो तरह के सेल्स पे कंसिस्ट करता है। तो एक को कहते हैं लैडिक सेल्स, जो कि क्या करते हैं, ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, और बाकी जो अदर टाइप ऑफ सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म्स की प्रोडक्शंस करते हैं। अच्छा, लैडिक cells which result to produce testosterone. It is required for the development of secondary sexual characteristic masculine characters. It also play an important role in spermatogenesis. कि ये जो लैडिक सेल्स है या जो टेस्टिस में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, या जितने भी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो प्रोड्यूस कर लेता है, और इट आल्सो हेल्प्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्ट्रक्चर हैं, दिस इज द टेस्टिस, और टेस्टिस के ये एक पार्ट है जिसमें ये सेल्स है, और फिर इसी सेल्स की हार्मोन्स की प्रोडक्शंस हैं। ओवरीज, in female, a pair of ovaries present in response of follicle stimulating hormones, the maturation of ova takes place.
These maturing ova forms the hormone estrogen. It is required for the development of secondary sexual characteristic. Luteinizing hormones of the pituitary gland stimulate the corpus luteum, which form the hormone progesterone. Progesterone hormone helps to maintain the pregnancy and hence it is also known as a pregnancy hormone. अच्छा, अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उसमें भी पेयर ऑफ ओवरीज पाए जाते हैं और इसका भी ये भी हेट्रोक्राइन होते हैं। दो तरह के मतलब फंक्शन है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक इन द रिप्रोडक्शन है और एक ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन है। अच्छा, ओवरीज है, दीज आर द ओवरीज और इस ओवरीज के फंक्शन जो है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्ट्रोपिक हार्मोन है और इसके रिस्पॉन्स से यहाँ फॉलिकल्स जो है ये स्टिमुलेट होते हैं और इसी से फिर हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। तो ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर लेता है। फिर एक दूसरा ट्रोपिक हार्मोन है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसी हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये पार्ट ऑफ दैट दिस पार्ट ऑफ द ओवरी और इसी से ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि दैट हेल्प इन द प्रेगनेंसी, मीन्स दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जो इम्प्लांटेशंस होती है एम्ब्रियो के, इट हेल्प्स टू होल्ड दैट। इसी वजह से इट इज़ नोन एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। Thank you for your time and thank you for watching. If there is any problem or any confusion आप पूछ सकते हैं। Thank you.